بیاٹی ریڈ لائن پر صفورہ کے مقام پر گیس پائپ لائن کی مرمت۔ گلستان جوہر کے متعدد علاقوں میں صبح 4 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ بات کریں گے سلمان سلیم سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل صفورہ پہ جو بی آر ٹی کا پروجیکٹ بن رہا ہے وہاں پر گیس لائن منتقل کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج گلستان جوہر کے مختلف مقامات اور مختلف بلاکس کے اندر گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ رات 11 بجے گیس بند کی جائے گی اور صبح سویرے جو ہے وہ گیس دوبارہ کھولی جائے گی۔ اس دوران کراچی 3، اسی طرح بلاک 7، بلاک 8، بلاک 13، بلاک 15 جو ہے وہ گیس کی فراہمی سے جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ ساتھ ہی جو سوئی گیس حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ ہی گھنٹے کی کام کے بعد گیس کی فراہمی جو ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا۔ جی، اقوام متحدہ کا سندھ میں موسمیاتی چیلنجز پر تشویش کا اظہار۔ سندھ حکومت کو موسمیاتی ڈائیلاگ منعقد کرنے کی تجویز دے دی۔ توانائی بحران پر تکنیکی تعاون کی پیشکش بھی کر دی۔ اقوام متحدہ کا سندھ میں موسمیاتی چیلنجز پر تشویش کا اظہار۔ سندھ حکومت کو موسمیاتی ڈائیلاگ منعقد کرنے کی تجویز دے دی۔ توانائی بحران پر تکنیکی تعاون کی پیشکش بھی کر دی۔ اقوام متحدہ کا سندھ میں موسمیاتی چیلنجز پر تشویش کا اظہار۔ سندھ حکومت کو موسمیاتی ڈائیلاگ منعقد کرنے کی تجویز دے دی۔ متحدہ کے 8 رکنی وفد کی چیف سیکرٹری سندھ سے ملاقات ہوئی۔ مکلی قبرستان کے تحفظ اور بحالی کے لیے اقوام متحدہ اور سندھ حکومت میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ لیونگ انڈس، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر معاملات پر چیف سیکرٹری اور اقوام متحدہ کے وفد میں گفتگو۔ اقوام متحدہ نے 2022 کے سیلاب متاثرین کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کے مطابق کمشنرز کو سندھ میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اقوام متحدہ کے وفد نے سندھ میں موسمیاتی چیلنجز پر تشویش کا اظہار کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ اینٹی انکروچمنٹ متحرک۔ تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کا آغاز۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ اینٹی انکروچمنٹ متحرک ہو گیا ہے۔ تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ضلع شرکی میں سولجر بازار، نشتر پارک، نشتر روڈ کے اطراف کارروائیاں کی گئی ہیں، جبکہ گرو مندر چورنگی سے لسپیلا چورنگی اور لسپیلا سے 3 ہٹی پل کے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں سے ٹھیلے، پتھارے، کیبن اور دیگر سامان اٹھا کر سڑک کو کلیئر کیا گیا۔ ضلع جنوبی میں بھی لارنس پلازا، فوارہ چوک اور دیگر مقامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ شعیب مختار ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کافی متحرک دکھائی دیتا ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ نے تجاوزات کے خلاف آج سے باقاعدہ طور پر نائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جلوس کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کا کہنا ہے کہ ضلع شرکی میں سولجر بازار، نشتر پارک، نشتر روڈ کے اطراف کارروائیاں کی گئی ہیں، جبکہ گرو مندر چورنگی سے لسبیلا چورنگی اور لسبیلا سے 3 ہٹی پل سے تجاوزات کا خاتمہ جو ہے کیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں سے ٹھیلے، پتھارے، کیبن و دیگر سامان اٹھا کر سڑک کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر عمار خان کا کہنا ہے کہ آج جو ہے ضلع جنوبی میں بھی لارنس پلازا، فوارہ چوک و دیگر مقامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی ضمیل ضیاء کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، ربیع الاول کے لیے اقدامات کیسے کریں۔ اسپیشل گرانٹ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 15 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔
फंड्स की शदीद किल्लत ने औरंगी टाउन की मुंतखब क़यादत को चकरा कर रख दिया। रबीउल अव्वल की तैयारियां कैसे करें, टाउन चेयरमैन ने सर पकड़। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद कहते हैं माह मुहर्रम के कामों की अदायगियां अभी तक नहीं की जा सकी, जैसे तैसे रबीउल अव्वल के काम करा रहे हैं। मसला ये है हमारा कि अभी जैसे बारह अव्वल का प्रोग्राम हुआ है, इसके अंदर हम लोग को इतनी मुश्किलात हैं, हमारे पैसे नहीं है देने के लिए इस वक्त। फिर भी हमारे चेयरमैन टाउन के जो चेयरमैन है जमील दिया साहब, उन्होंने फिर भी एफर्ट्स किए हैं कि उन्होंने किसी को घेरा डाल के देना है या लाइटें लगानी, वो हम करा रहे हैं। वो हम कैसे करा रहे हैं हमको पता है। हमारे पहले के भी मुहर्रम के पीछे के बिल नहीं हुए हैं अभी तक। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने बताया कि सिंध हुकूमत से बार बार दरख्वास्तें कर रहे हैं कि माहाना स्पेशल ग्रांट दी जाए। सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, 15 रोज का अल्टीमेटम दिया है, कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो मुआहिदा मंसूख कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं सॉलिड वेस्ट के अफसरान से जो है मैंने बात किया और इन्हें अभी जो है मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर ये रबी अव्वल का जो हमारा महीना है, ईद मिलादुन नबी के हवाले से मस्जिद और उसके अतराफ और शाहराहों का जो है मेन सफाई चाहिए। और अगर रिजल्ट सही नहीं हुआ तो मैं एज ए टाउन चेयरमैन और मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, मैं सीएम साहब से कह के आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगा। जमील जिया के मुताबिक औरंगी टाउन में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से निकलने वाले जुलूसों की तादाद 30 से जायद है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग दरकार है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तैयारियां जारी हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल का इजलास, रैलियों और जुलूसों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर में सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर अल्लामा अशरफ गोरमानी की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में उलमा कराम का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूस, रैलियों की सूरत हाल और उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर सुन्नी उलमा कौंसिल अल्लामा अशरफ गोरमानी ने कहा कि अहलियान कराची मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों में भरपूर शिरकत करें। इस साल इंशाअल्लाह ये हमारे साथ जुलूस में शरीक होंगे। हमारा मुश्तरका जुलूस होगा बुखारी मस्जिद, अनवार वाली और सबसे खादी मस्जिद में। इंशाअल्लाह ये सारे मिलकर हम कभी जुलूस निकालेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा जमील राठौर ने कहा, शहर भर में 12 रबीउल अव्वल के जलसे मुनक्किद होंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। शबे मौलूद मीर प्रोग्राम्स हैं और फिर इसके बाद शबे विलादत प्रोग्राम है। फिर इंशाअल्लाह यौम विलादत मुस्तफ़ा इनके जुलूस निकलते हैं और फिर हमारा भी जुलूस निकलता है। इतना छोटा मोटा आप इसमें भी जरूर तशरीफ लाएं। SSP डॉक्टर फर्रुख रजा ने कहा, जुलूसों की हिफाजत के लिए 2000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है कमोबेश 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ रैलियों में डिप्लॉयमेंट होगी। उसमें हमारा नेशनल पार्क भी आ जाता है, हमारी जो है वो गुलिस्तान जौहर भी आ जाता है, उसके बाद गुलशन इकबाल में राठौर साहब वालों का प्रोग्राम है, वहाँ पे आ जाता है। नेशनल पार्क एक का अहम मरकज़ी होता है, वहाँ पे पार्क की सिक्योरिटी, वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल रूम है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया है। हमारा एक सोल्जर बाजार में कंट्रोल रूम है, उसको भी इस्टेब्लिश किया है। इस मौके पर उलमा कराम ने कहा कि उम्मीद है 12 रबीउल अव्वल को पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान लॉन्च रैली की क़यादत कराची के नायब नाज़िम अल्लामा सैयद अब्दुल वहाब अकरम ने की। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। जश्न विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा, गली गली नगर नगर जुलूस, रैलियां और महफिल इनात। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से समंदर में रैली निकाली गई। लांचों की रैली मनोड़ा से शुरू हुई, इर्द गिर्द के जजायर से होती हुई किमाड़ी जेटी पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर नायब नाज़िम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची अल्लामा सैयद अब्दुल वहाब अकरम का कहना था कि रैली के इनेकाद का मकसद खुशकी के साथ समंदर के दरमियान भी सरकार ए दो आलम की खुशियाँ मनाने आए हैं। हम सालों से लॉन्च रैली निकाल रहे हैं। कराची में बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह किमाड़ी में जमात अहले सुन्नत किमाड़ी टाउन के ज़ेर एहतमाम मनोड़ा की सरजमीन पर समंदर की लहरों पर अल्हम्दुलिल्लाह
प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुलूस जो कि लांचों पर जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम साल साल से जारी व सारी है। आप देख रहे हैं कि दूर दराज से उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इनकी आमद का मकसूद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मुबारका को बुलंद करें। मुख्तलिफ इलाकों से शरीक कारकुनान ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हम सब अल्लाह के रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है, जिस पर जितना शुक्र किया जाए वो कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। यही वजह है कि कायनात की हर शय अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है और हम मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन कायनात की सबसे बड़ी ईद समझ करके मनाते हैं। रबियुन नूर शरीफ और इस महीने में 12 रबियुल अव्वल शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत, मोहब्बत और उनका प्यार लोगों को बताने के लिए कि आओ निजात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना हम गुनाहगारों के लिए बाइज़ रहमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हमने अज़वाज मुतहरात को माना, हमने नबी पाक की आल को माना। लॉन्च रैली में कराची के मुख्तलिफ अजला से कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और समंदर के दरमियान आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किए। कैमरामैन राना जहांसेब के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। आवाम के लिए खुशखबरी। आलमी मार्केट में तलब में कमी पर खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। ज़राए कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 71 पैसे और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 91 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ भेजी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल मसनूआत सस्ती करने की तजवीज़। 1 सितंबर से अब तक लंदन ब्रांड ऑयल 10% सस्ता हो चुका। लंदन ब्रांड ऑयल $78.80 से घटकर $71 फी बैरल पर आ गया। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 71 पैसे कमी की तजवीज़ भेजी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 259 रुपए 10 पैसे से घटकर 247 रुपए 39 पैसे पर आ जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल 11 रुपए 91 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 75 पैसे से कम होकर 250 रुपए 84 पैसे पर आ जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर मिट्टी का तेल 8 रुपए 24 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 86 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फैसले के बाद इतलाक 16 सितंबर से होगा। नई कीमतों पर 16 सितंबर से 15 रोज के लिए नई कीमत पर अमल दरामद किया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए ऐसा इक़दाम। नादरा के 2 मेगा सेंटर्स में स्क्रीनिंग डेस्क कायम कर दिए गए। शहरियों के मुफ्त टेस्ट आगाही फराहमी की जा रही है। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध के मातहत चलने वाले सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने शहर में नाकारा 2 मेगा सेंटर्स में स्क्रीनिंग डेस्क बना दी। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले अफराद की थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। गुलिस्तान जौहर के नादरा ऑफिस में आने वाले अफराद ने खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है और फ्री में टेस्ट है, सबको करवाने चाहिए। जी बच्चे के टेस्ट हो रहे हैं, बहुत फ्री में हो रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत महंगे मिलेंगे। थैलेसीमिया क्लिनिक के यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो रही है, टेस्ट है मेरी बिल्कुल फ्री ली जा रही है और यहाँ पे हर चीज़ मुफ्त में करवा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के डॉक्टर एहसन का कहना था कि थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के साथ साथ हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, CPC और दीगर टेस्ट भी मुफ्त किए जा रहे हैं। आवाम को चाहिए सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव स्टेप है। इनिशियली सिंध गवर्नमेंट ने उठाया है विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ पे जो है हम थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग फ्री हो रही है और उससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, HIV और उससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जनरल पब्लिक को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। नादा की कोऑर्डिनेशन से और सैलानी ब्लड बैंक की कोऑर्डिनेशन से ताउन मुमकिन हो सका है। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्रे नाज जमाल काजी ने कहा कि बहुत जल्द सिंध भर में थैलेसीमिया से बचाव की स्क्रीनिंग शुरू करेंगे ताकि हर साल बीमारी के शिकार होकर पैदा होने वाले बच्चों की रोकथाम मुमकिन हो सके। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। जामे कराची में शोबा उर्दू की जानिब से तकरीरी मुकाबला मुनक़िद हुआ।
कराची यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तलबा ने साइंस मेला भी सजाया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामा कराची में कायद-ए-आज़म अकेडमी व शोबा उर्दू के इश्तराक से तकरीरी मुकाबला। तलबा व तालिबात का कायद-ए-आज़म को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत, कायद के विजन की तकमील का ज़म। हुकूमत पाकिस्तान की सहरोज़ा तकरीबात का आखिरी प्रोग्राम कायद-ए-आज़म अकेडमी और जामा कराची के शोबा उर्दू जामा के इश्तराक से तकरीरी मुकाबला हुआ। अंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तकरीब की मेहमान खास प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम डीन सोशल साइंसेज जामिया कराची थी, जबकि सदारत सैयद आबिद रिजवी सदर अंजुमन तरक्की उर्दू ने की। तकरीरी मुकाबले में तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरी जानिब शोबा फार्मेसी की ज़ेर एहतमाम साइंस फेयर का इनेकाद किया गया। तालबा ने जदीद साइंस प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए, जबकि खेलों की सरगर्मियां भी मुनक्किद हुई। कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं पूरे साल, फिर एक थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए साइंस प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ गेमिंग प्रोजेक्ट, और बाहर फूड स्टॉल्स भी काफ़ी लगे हुए हैं। इधर पीछे गेमिंग सेक्शन है, उधर हमारा साइंस फेयर है, सारा साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं सारे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, माइंड फ्रेश हो जाता है इससे, और बच्चों को थोड़ा पढ़ाई से हटके भी इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी। हमारे पास जो फर्स्ट KU साइंस फेयर है उसमें हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं। एक हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ में हमारे पास साइंस मॉडल्स हैं। इसमें हमारे पास हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। फार्मेसी डिपार्टमेंट से मेजरली हमारे पास स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंसेज, इन सारी डोमेन से भी बच्चों ने हमारे पास पार्टिसिपेट किया है। तकरीबात में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ सईद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। बिजनेसमैन ग्रुप और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा है कि सनत तरक्की नहीं कर सकता, पैदावारी लागत में कमी नागुज़ीर है। सदर काटी जौहर कंधारी के मुताबिक कराची चैम्बर और काटी के मुश्तरका मसाइल हैं, मुत्तहिद होकर मसाइल हल करना है। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची चैम्बर के इलेक्शन के सिलसिले में बिजनेसमैन ग्रुप ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा किया। काटी सदर जौहर अली कंधारी ने बिजनेसमैन ग्रुप को खुशामदीद किया और कहा कि काटी समेत 7 एसोसिएशंस कराची चैम्बर के मेंबर हैं। ज़ुबैर मोतीवाला की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ और मसाइल पर चार्ट तैयार करके हुकूमत को पेश करना होगा ताकि मुतालबात पेश किए जा सकें। सदर काटी ने कहा कि कराची चैम्बर के इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया। कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, लेकिन टैक्सेस कलेक्शन बढ़ रही है। कराची पर तवज्जो दिए बगैर पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकिम नहीं किया जा सकता। हम सब आपके साथ हैं, मिलकर हमें इस पर काम करना चाहिए और अपनी मसाइल बुनियादी हुकूक है हमारे शहर के, हमारी इंडस्ट्री के गौर करनी चाहिए। बाकी अब जो आपके इलेक्शन के हवाले से इतना कहूँगा कि आप फिर एक मरतबा इलेक्शन का आप फेस कर रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह आप इस बार इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि आपने जो अपना कैंडिडेट मुंतखब किया है, खासतौर पर सदारत के लिए जावेद गिलवानी साहब बड़े फोकल पर्सन है। ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सनतकारों और एंटरप्रेन्योरशिप में है। सनतों के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहा कि एक्सपोर्ट सेक्टर के हाथ बांधकर बरामदात में इजाफा नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने आइंदा साल के लिए बरामदी शोबे का हदफ $15 अरब मुकर्रर किया है, जिसमें $7 अरब चावल की एक्सपोर्ट के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान की पैदावारी लागत का खत्ता के दीगर ममालिक से मुआवजाना करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। The future of Pakistan lies in the hands of industrialists and entrepreneurs. Yes. This is the key word. माशाल्लाह जो आपने लिख के रखा है, it is indeed a key word कि हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान को कैसे आगे ले जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान को आपने आगे ले जाना है तो इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, we are going nowhere। अगर आप इसी तरह से करेंगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले काम करेंगे, अब वो पॉलिसी लेके आएंगे जो कि हम अफोर्ड ही न कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टर अपना माल बेच ही न सके। डिप्टी पेट्रोल एंड चीफ काटी ज़ुबैर छाया ने कहा कि बिजनेसमैन ग्रुप से पुराना ताल्लुक है। ताजिर बरादरी ने मुश्तरका तौर पर जिन मसाइल पर आवाज उठाई, इसमें कामयाबी हुई। कैमरामैन हारिस के साथ अशरफ खान, सिटी 21। SAP सॉफ्टवेयर और IT कंपनी के MD साकिब अहमद का कहना है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। अगर हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर ने AI और IT को ना अपनाया तो पाकिस्तान दुनिया में बहुत पीछे रह जाएगा। अयाज राना से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिद्दत की तो इस वक्त हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है, हुकूमत भी चाहती है कि हम अपनी तमाम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें और हम IT की जो चीज़ें हैं उसको अपनाएं, जिद्दत को अपनाएं और पेपरलेस होने की कोशिश करें। जहाँ प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बड़ा काम हो रहा है कि लोग तमाम वो चीज़ें जो हैं अब जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती लेवल पे क्या देखना होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। हम कहते तो बहुत हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो AI पर है, हमारा फ्यूचर जो है वो IT को जब तक अपने साथ
इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। उसको जानने के लिए सैप कंपनी है जो कि आईटी से मुंसलिक है, वो कैसा देख रही है, किस तरह काम चल रहा है सर? दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और हर रोज़ नए से नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं और जिद्दत जिस तरह की आपने बात की, हर काम करने का तरीका तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी ये तरीका उस तेज़ी के साथ तब्दील भी हो रहा है और उसके साथ साथ हम उस जिद्दत को अपनाने की बहुत कोशिश भी हो रही है। आई थिंक पाकिस्तान का पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आईटी को अपने साथ लेकर आगे चलने की भरपूर कोशिश कर रहा है और उसके अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं जिसके जरिए लोग बहुत तेज़ी के साथ इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं चीज़ों के अंदर, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो आईटी अब हर बिजनेस की एक बेस लाइन बन गया है और वक्त के साथ साथ हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने इस फैक्ट को तस्लीम किया है और आईटी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए रवा दवा है। एफबीआर के हवाले से आपने कोई हुकूमत को पेशरफ्त हुई है या कोई चीज़ ऐसी बताई है कि कुछ इस तरीके के अगर हम चीज़ों को अपना लें, खास करके टेक्नोलॉजी को लेके, जो कि करप्शन की भी बड़ी बात होती है कि पेपरलेस भी हो जाए, लोगों की जो लीकेजेस हैं वो भी खत्म हो जाए, उसके ऊपर कोई बातचीत हुई है गवर्नमेंट लेवल? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट के अंदर एसएपी बहुत सी जगहों पे लगा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, एनटीडीसी, पीएसओ, अगर आप बात करना शुरू करें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट इन तमाम जगहों पर एसएपी को यूज़ कर रही है। एफबीआर के अंदर भी गवर्नमेंट के साथ हमारी भरपूर डिस्कशन जारी है जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एसएपी जो है वो ये स्पेशली टैक्स से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और गवर्नमेंट को हम अपनी वो तमाम सिफारिशात पेश कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस डायलॉग मौजूद है गवर्नमेंट के साथ हमारा इस टॉपिक पे। जहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो फिर बात यही है कि हुकूमत भी अब एफबीआर के लिए भी अगर हम बात करें, जहाँ सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि उसको पेपरलेस होने की ज़रूरत है, और वहीं पे आप देखेंगे जो एसएपी है उसके सॉफ्टवेयर या उसकी वो तमाम जो इनकी काविश है या इनकी जो ज़रूरियात जो आपको ज़रूरत हो हुकूमत को, वो इनके ही ज़रिए से पूरी की जा सकती है। जहाँ दुनिया में ये ट्रेंड है और इन्हीं के सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इसके ऊपर अब काम करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर पेशरफ्त भी हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान अब देखते हैं कि सख्त कितनी जल्दी इस चीज़ों को अपनाने की तरफ जाता है। जी।